Hello students, welcome to all in the social science class. Dear students, as in previous chapter we have studied that the Mughal Empire had knitted the whole country into one single unit. But after the death of Aurangzeb, the Mughal successors were very weak and not capable to consolidate the Mughal Empire. So the vast Mughal Empire began to disintegrate, which led to the emergence of independent states. So today in this module we are going to discuss about the independent states that emerged after the Mughals. Dear students, as I have told you that the death of Mughal Emperor Aurangzeb led to the continuous decline of Mughal Empire. With the passage of time, it lost its glory and the empire became confined to only some square kilometers around Delhi. In 1803, the British occupied Delhi and the last Mughal emperor Bahadur Shah Jaffar. Bahadur Shah Jaffar became a mere pensioner. Now the Delhi was under the control of Britishers. बेटा मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइनेशन कॉन्टिन्यूस होता रहा. टाइम के साथ साथ मीन्स जैसे जैसे टाइम बीतता गया मुगल एम्पायर की ग्लोरी यश पूरी तरह से नष्ट हो गया और मुगल एम्पायर सिर्फ कुछ स्क्वायर किलोमीटर तक ही लिमिटेड हो गया. 1803 में ब्रिटिशर्स ने दिल्ली और लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को अपने कब्जे में कर लिया. बहादुर शाह जफर सिर्फ पेंशनर ही रह गए. दिल्ली अब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गई थी. डियर स्टूडेंट्स, एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर दैट देयर वर कॉन्टिन्यूअस वार्स एंड कॉन्स्पिरेसीज ऑफ सक्सेशन अमंग द मुगल्स. ड्यू टू दिस द पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल कंडीशन of empire declines. Many local and regional forces began to emerge in India. There were a large number of independent and semi-independent parts came in the 18th century. These were Bengal, Awadh, Hyderabad, Mysore and Maratha kingdoms. मीन्स मुगल के बीच उत्तराधिकार को लेकर षड्यंत्र और लगातार युद्ध होते रहने की वजह से उनकी पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी गिर चुकी थी और वो पूरी तरह से पॉलिटिकली एंड फाइनेंशियली वीक हो चुके थे. तो उस टाइम में इंडिया में कई लोकल और रीजनल फोर्सेस एमर्ज हो रही थी, यानी नई नई ताकतें उभर कर आ रही थी. 18th सेंचुरी में काफ़ी संख्या में इंडिपेंडेंट और सेमी इंडिपेंडेंट पार्ट्स उभर कर आई और यू कैन से एमर्ज हुई, like Awadh, Bengal, Hyderabad, Mysore and Maratha kingdoms. The students, the British began to find the way to overcome these parts so that they could establish their own empires in India. Some of these independent states emerged because of the breaking away of the governors of the provinces from Mughal Empire, while other states came into power through revolts by local chiefs and zamindars. These independent states were not able to improve the condition of their states. So there was a situation of disturbance and confusions. So बेटा ब्रिटिशर्स बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर जैसी पार्ट्स को दूर करने का वे आउट ढूंढने लगे ताकि वे इंडिया में अपना साम्राज्य, अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर सकें. इन इंडिपेंडेंट स्टेट्स में से कुछ मुगल एम्पायर्स के प्रोविंसेस यानी प्रांतों के गवर्नर्स के टूटने के कारण और कुछ स्टेट्स एग्जिस्ट हुई और यू कैन से एमर्ज हुई, जबकि कुछ अदर स्टेट्स लोकल चीफ्स और जमींदार्स के रिवोल्ट के थ्रू पार्ट्स में आई. ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपने स्टेट्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने में बिल्कुल भी मीन्स कैपेबल नहीं थी, सक्षम नहीं थे.
सो वहाँ डिस्टर्बेंस और कन्फ्यूज़न की सिचुएशन बनी रही और ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपना रूल सही ढंग से नहीं चला पा रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स फर्स्ट डिस्कस बंगाल विच वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। मुर्शीद कुली खान who was appointed as a Subedar in Bengal. Later on, he promoted to Diwan. He took advantage of weak central authority and occupied Bengal. Now, Bengal was under the control of Murshid Quli Khan. Now, he became the governor of Bengal and established internal and external peace in Bengal. He also organized revenue system and provided loans to the poor farmers. He was a generous ruler and guaranteed equal opportunities both the Hindus and Muslims. He also appointed Hindus and Muslims to high official posts. In this way, he consolidated his province. मुर्शीद कुली खान को बंगाल में सूबेदार अपॉइंट किया गया था, फिर उसे दीवान की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया। उसने बंगाल की वीक सेंट्रल अथॉरिटी का फ़ायदा उठाया और बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया। बंगाल अब पूरी तरह से मुर्शीद कुली खान के कंट्रोल में था। वह बंगाल का गवर्नर बन गया और वहाँ उसने इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस भी इस्टेब्लिश की। उसने रेवेन्यू सिस्टम को भी ऑर्गेनाइज किया और पुअर फार्मर्स को लोन्स भी प्रोवाइड किए। वह एक दयालु और उदार रूलर था और उसने हिंदूज एंड मुस्लिम्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की। उसने हिंदूज एंड मुस्लिम्स को हाई ऑफिशियल पोस्ट पर अपॉइंट किया और इस तरह से उसने अपने प्रोविंस को कंसोलिडेट किया, मीन्स यूनाइट किया। डियर स्टूडेंट्स, after the death of Murshid Quli Khan, Shujauddin and Alwardi Khan became the Nawabs of Bengal. Means मुर्शीद कुली खान की डेथ के बाद शुजाउद्दीन और अलवर्दी खान बंगाल के नवाब बन गए। Dear students, all the Nawabs of Bengal realized the importance of trade. They provide all the facilities to the local and foreign traders. In order to encourage the traders, they built roads and thanas. In order to establish monopoly over trade, they even forced the East India Company to obey their laws of the land and pay the same custom duty that was paid by the local merchants. बंगाल के नवाब्स को ट्रेड की इम्पोर्टेंस जब रियलाइज़ हुई तो उन्होंने लोकल और फॉरेन ट्रेडर्स को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। ट्रेडर्स को एनकरेज करने के लिए उन्होंने रोड्स और थानास भी बनवाए। ट्रेड यानी व्यापार पर एकाधिकार इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भी लैंड लॉज ओबे करने के लिए मजबूर किया और कस्टम ड्यूटीज़ को पे करने के लिए भी मजबूर किया गया, जो लोकल ट्रेडर्स के थ्रू पे किया जाता था। Dear students, the Nawabs of Bengal were lack of vision, so they could not understand the increasing threat of the East India Company. Dear students, let's discuss about Awadh. Mughal Emperor Muhammad Shah appointed the Sadat Khan as the governor of Awadh in 1722 CE. He led the foundation of a kingdom in Awadh province. Sadat Khan reformed the revenue system so that the peasants could be saved from the exploitations of zamindars. He also controlled the resistance by these zamindars. In order to consolidate his power, he introduced an efficient administration. He kept an army which was well trained, well armed and well paid. यानी मुगल एम्परर मोहम्मद शाह ने सादत खान को 1722 ईस्वी में अवध का गवर्नर अपॉइंट किया। उन्होंने अवध प्रोविंस में एक किंगडम यानी एक राज्य की नींव रखी। सादत खान ने रेवेन्यू सिस्टम में काफ़ी रिफॉर्म्स यानी सुधार किए
ताकि पीजेंट्स को जमींदार्स के एक्सप्लॉयटेशन से, शोषण से बचाया जा सके। उन्होंने इन जमींदार्स के प्रतिरोधों को भी कंट्रोल किया। अपनी पावर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की और उन्होंने इसके लिए एक आर्मी भी बनाई जो कि वेल ट्रेन्ड, वेल आर्म्ड एंड वेल पेड थी। डियर स्टूडेंट्स, इन 1739 CE, सफदरजंग succeeded Saadat Khan. He was the nephew of Saadat Khan and he was also a wazir at the Mughal court. In order to develop Awadh and maintain prosperity, he made efforts to establish peace in Awadh. The peace in Awadh led to the growth of Lucknowi culture around the court of Awadh. 1739 में सफदरजंग ने सादत खां को अपना उत्तराधिकारी बनाया और वह जो है सादत खां का भतीजा था और मुगल दरबार में वजीर भी था। अवध को डेवलप यानी विकसित करने के लिए और प्रॉस्परस मीन समृद्ध बनाए रखने के लिए और अवध में शांति बनाए रखने के लिए उसने कई एफर्ट्स किए और अवध के दरबार में लखनवी कल्चर का विकास भी किया। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट हैदराबाद। निज़ाम उल मुल्क असफ जहां founded the state of Hyderabad in 1724 CE. He was a powerful noble under the Mughal Emperor Farrukhsiyar. He suppressed the opposition and resistance of Deccan when he was the viceroy of Deccan. After suppressing the opposition, he established an efficient administration. निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में हैदराबाद की स्थापना की। वह मुगल एम्परर फारुखसियार के अंडर एक पावरफुल नोबल था। उन्होंने अपोजिशन और डेक्कन के प्रतिरोध को कुचल दिया। जब वो डेक्कन यानी साउथ के वाइसराय थे और अपोजिशन यानी विरोध को सप्रेस करके यानी दबा के उन्होंने एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन भी एस्टैब्लिश किया। मोहम्मद खान मेड हिम वजीर इन 1720 CE. He tried to improve the administration. Muhammad Khan was a corrupt and fickle-minded ruler. This made Asaf Jah disgusted. So he decided to go back Deccan. He laid the foundation of Hyderabad state. He did not openly declare his independence. In order to crush the corruption in revenue system, he suppressed the revolts of Jamindars. After his death in 1748 CE, disturbance started in Hyderabad. So बेटा मोहम्मद खान ने उन्हें 1725 में वजीर बनाया और एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की। मोहम्मद खान जो कि एक करप्ट मीन्स भ्रष्ट और फिकल माइंडेड मीन्स चंचल दिमाग का रूलर था। इससे आसफ जाह को निराशा और घृणा हो गई। सो उन्होंने वापस डेक्कन जाने का डिसीजन लिया। उन्होंने हैदराबाद स्टेट की नींव भी रखी पर उन्होंने ओपनली इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर नहीं किया। रेवेन्यू सिस्टम में करप्शन यानी भ्रष्टाचार को क्रश करने के लिए यू कैन से कुचलने के लिए उन्होंने जमींदार्स के विद्रोहों को दबा दिया और 1748 में उनकी डेथ के बाद हैदराबाद में फिर से डिस्टर्बेंस शुरू हो गई। Dear students, we have discussed about the independent states like Bengal, Awadh and Hyderabad. The rulers of these states did not openly declare their independence even though they had established independent kingdoms. In order to please the Mughal emperor, they continued sending tributes or helping him in the time of need. But there were some other independent states that openly declared their independence from the Mughal Empire. They were the Sikhs, the Marathas and the Rajputs. So it means बंगाल, अवध और हैदराबाद के रूलर्स ने अपने आप को ओपनली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं किया इवन दो उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट्स इस्टेब्लिश कर ली थी। मुगल एम्परर को खुश करने के लिए
वे ज़रूरत के समय उनकी हेल्प भी करते रहे। बट वहाँ कुछ अदर इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जिन्होंने खुले तौर पर यानी ओपनली मुगल एम्पायर से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। और ये स्टेट्स थे द सिख्स, द मराठास एंड द राजपूत्स। सो वी विल डिस्कस अबाउट दीज किंगडम्स इन आवर नेक्स्ट मॉड्यूल। Thank you. Stay blessed. Stay happy.